So see, the first it is the antenna resistance. Okay, so antenna resistance has a two component, that is the radiation resistance and resistance due to the actual loss in antenna. Okay, so first we see the radiation resistance. The radiation resistance is defined as the ratio of power radiated by given antenna to the square of current at the input of antenna. Okay, this is the formula for that. Formula में क्या है, the power radiated by the antenna. न्यूमिनेटर में क्या है, पावर रेडिएटेड बाय एंटीना, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ करंट एट द इनपुट ऑफ द एंटीना. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला. And what is for PT? PT is the radiated power by the antenna and current, that is I, current at the feed point. Okay, this is the radiation resistance and this is the formula for radiation resistance. Okay, so see the next term, it is the antenna efficiency. Then so see the, this is the formula for antenna efficiency. RR, it is the radiation resistance, already see in previous. Okay, and this, that is RD, is the loss resistance. Okay, so see, it is the ratio of radiation resistance to the total antenna resistance. Okay, formula के ऊपर से आपको definition बनानी है. What is the antenna efficiency? That is the ratio of radiation resistance to the total antenna resistance. Okay, so see the next, that is the polarization. What is polarization? It is defined as the direction of a electric vector or a signal in a electromagnetic wave radiated from the antenna. Okay, polarization क्या होता है, वो एक डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक वेक्टर और सिग्नल की, जो कि कहाँ पे होती है, जो कि एंटीना क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करता है, रेडिएट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द पोलराइजेशन. ओके, सो दिस आर द टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स, that is antenna efficiency and polarization. Then see the next one, it is the bandwidth of antenna. Okay, so see the first point, that is the bandwidth of antenna. First it is defined as the angular separation between the two half power point on the power density radiation pattern. Okay, क्या होता है बैंडविड्थ ऑफ एंटीना, ये एंगुलर सेपरेशन होता है दो पावर पॉइंट के बीच में का, जो कि क्या होता है, जो भी रेडिएशन पैटर्न है पावर डेंसिटी का, उसमें जो दो पॉइंट्स होते हैं पावर पॉइंट के, उसका एंगुलर सेपरेशन जो है दोनों का, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज़ द बैंडविड्थ ऑफ एंटीना. ओके, यहाँ पे शो भी किया है, देखो ये क्या रहता है आपका, दैट इज़ द बैंडविड्थ. ओके, ये क्या है, अभी ये रेडिएशन हो रहा है, रेडिएशन पैटर्न है ये आपका. ओके, और ये यहाँ पे क्या है, दैट इज़ द बैंडविड्थ. ओके, और दिया है देखो, इट कैन बी डिफाइंड एज एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू 3 dB down points on the field strength of radiation pattern of antenna. ओके, वो सेम ही है जो अभी मैंने बताया. ओके, ये जो दो पावर पॉइंट्स है, ओके, या फिर ये कंसिडर कर सकते हो, ये जो दो पावर पॉइंट्स है आपके, उन दोनों में का जो क्या है, सेपरेशन है. ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, पावर डेंसिटी रेडिएशन पैटर्न जो है, उन दोनों को क्या बोलेंगे, दैट इज़ द बैंडविड्थ ऑफ एन एंटीना. ओके, और बैंडविड्थ किस में एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, इट इज़ इन डिग्रीज. ओके, सो सी द नेक्स्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज़ द पावर डेंसिटी. देन व्हाट इज़ द पावर डेंसिटी? द पावर डेंसिटी
the electromagnetic waves cause the energy to flow from one point to the other in direction of propagation. जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी एनर्जी होती है अपनी वो फ्लो करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, वो भी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में. ओके, प्रोपोगेशन. ओके, so see next, the power density is defined as the rate at which the energy passes through given surface area in the free space. ओके, पावर डेंसिटी क्या होता है, जो भी हम लोग एनर्जी पास करते हैं उसका जो रेट है वो एरिया सरफेस एरिया में, वो फ्री स्पेस में जो पास होती है, ओके, उस वो रेट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ द पावर डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट एरिया. ओके, नेक्स्ट है फील्ड इंटेंसिटी. अब फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फील्ड इंटेंसिटी is defined as the intensity of electric and magnetic fields of electromagnetic wave propagating in a free space. ओके, जो फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, जो कि क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेगी, प्रोपोगेट करेगी फ्री स्पेस में. ओके, सो सी the electric field intensity is given in volts per meters. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, वोल्ट्स पर मीटर है. ये यूनिट भी आपको कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं, फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, या फिर पावर डेंसिटी का यूनिट क्या है. यहाँ पे पावर डेंसिटी का यूनिट क्या है, मेजर इन वैट्स पर स्क्वायर मीटर. ओके, और फील्ड इंटेंसिटी का क्या है, वोल्ट्स पर मीटर. ये ध्यान में रखना चाहिए आपको. नेक्स्ट देखो क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन एम्पियर टर्न्स पर मीटर. ओके, इसका भी यूनिट आपको ध्यान में रखना होगा. मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, एम्पियर टर्न्स पर मीटर. पावर डेंसिटी का है वैट्स पर स्क्वायर मीटर, और फील्ड इंटेंसिटी का है वोल्ट्स पर मीटर. ओके, so see the next point, that is the field intensity at a given point in a space may also be defined as the amount of voltage induced in a wire antenna of 1 meter long located at that point. ओके, फील्ड इंटेंसिटी जो है आपको क्या है, आपको अगर एक पॉइंट की फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी स्पेस में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी अमाउंट ऑफ वोल्टेज इंड्यूस हुआ है वायर एंटीना पे ऑफ 1 मीटर लॉन्ग लोकेटेड एट द पॉइंट. ओके, सो उस पर से हम लोग क्या कर सकते हैं, फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं. ओके, पावर डेंसिटी कैसे एक्सप्रेस होगा मैथमेटिकली, द फर्स्ट इट इज़ द फॉर्मूला P is equals to E into H, that is the magnetic field and electric field. So see, P is the power density, again unit is that watt per meter square, and E is the RMS electric field intensity volt per meter, and H is the RMS magnetic field, okay, ampere turns per meter. Okay, in this way this is an important terms and definition. Okay, so thank you very much.